Hello everyone, good morning one and all. This is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. I welcome you all to the upcoming video series in which I'll going to talk about varieties of interesting topics related to banking and its products and services. Hope you are doing well and you are fine also. We know we are facing a lot of crisis right now, but the show must go on. So उसी इच्छाओं को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं एंड विल टॉक अबाउट वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में आज हम बात करेंगे. सो शुरू करते हैं. सो in the previous classes we have already gone through lots of financial concepts like banking के बारे में पढ़ चुके हैं. what is मुद्रा बैंकिंग के बारे में बताया चुका है, माइक्रो फाइनेंस एक्सेट्रा वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स. सो जब हमको पता है कि बैंक क्या होता है, अपने पैसे अपने फंड्स को किस तरीके से कहाँ चैनलाइज करना है, व्हेन वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट, सो वी शुड ऑल्सो नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल एंड एवरीवन, सो दैट हमारा प्रपोर्शन हमारा पोर्टफोलियो ताकि अच्छी तरीके से बन सके और अपने सेविंग्स को हम अच्छे तरीके से चैनलाइज करके इन्वेस्ट कर सके, ताकि कुछ ना कुछ जो सेविंग्स है वो मल्टीप्लाई होकर अपने पास कुछ प्रॉफिट्स मिल सके. सो टुडे in the video series we'll be continuing to talk about the banking products, services, cashless payment जो quite much interesting to each and everyone, वो हमको पता है. क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे. सो we'll go on like this. Clear? So let's start with the banking product today. एक एक चीज़ एक एक लाइन इसमें लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है. we'll talk about that one. Right. Let's say finance and funds are the lifeblood of the individual trade commerce in the whole world. कहने का मतलब finance जो deal करता है with the funds, with the inflow and outflow of the funds, it's not only important to the individual but also to the trade and the whole commerce itself. So एक तरह से कह सकता हूँ कि इसके वजह से इनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है. The money must be available to each and everyone at when as and when they are required. मैं previous classes में already बोल चुका हूँ, this is the banking sector only which was performing on their duty hours in this pandemic. It is the only banking sector, it is the only sector which was working. किस लिए? ताकि आपको as and when you require funds they can be available through the help of the bank. So the money must be available to each and every individual as and when they are required to fulfilling the basic as well as luxurious. तो फिलहाल पेंडेमिक एक एग्जांपल अगर ले ले तो luxurious needs तो है नहीं, but basic amenities can be available to the doorstep of each and every individual with the help of bank. Clear? In order to have a continuous flow of money, I am talking about this continuous flow of money, how it can be possible when we have got savings accounts. Clear? We need to have the money to kept safely and it must be kept where it can be multiplied also. We not only require this funds to be kept but also it should multiply. In order to get this solution, the institution bank is the safest and easiest ways to keep our extra income, the money left after deducting the expenses from the income generated. ये एक बैंक ऐसी संस्था है जहाँ हमारे पैसे सेविंग हैं, वहाँ सेव किया जा सकता है और उसे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है. But the thing is that where we should save, but the thing is that in which concern, in which products, in which services we should invest that one. So ये सब बातें आती, इन्हीं सब बातों को लेके अपन अभी डिस्कस करेंगे कि there is a vital link, I am talking about there is a vital link between the banks and its customer, who is a person who opens an account with the bank and keeps transacting with them through it as per their needs, as the link utilizes the surplus money of them in the beneficial investment alternatives. In other words, banks are encourage the public to deposit their savings with them so that they can save the money for their rainy days by offering interest on their savings. सीधी सी बात है, बैंक एक ऐसी संस्थान है जो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि जहाँ पर अपने जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है, उसे हम एक तरह से कैप करके रख सके ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. सो अगेन बैंक प्रोवाइड्स इननंबरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट क्या प्रोवाइड करती है बैंक? इननंबरेबल, जिसका कोई गिनती नहीं है, जिसमें हम देख सकते हैं कि
प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं और सर्विसेज भी ज़्यादा हैं जो बैंक आपको अवेलेबल करवाती है। उसी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से। Why it is required to for their daily operations and become inseparable part of their life. I have already mentioned here the example, that very recent example I suggest is the pandemic of COVID-19, where this is the only organization who stands behind the customer and act as a backbone in providing the funds to the people. लेकिन ये हुआ कैसे? जब बैंक में अकाउंट हुआ और उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जिनके द्वारा उनके पैसे जो हैं वो डबल या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Now, when we are talking about this chart again, देखिए, following is the chart which shows the detail of the products and services provided by the company. We'll discuss here the deposit, loan and third party product. उससे पहले अगर हम देखना चाहें तो हम किस तरीके से देख सकते हैं, हम इस टोटल चीज को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। द बैंकिंग प्रोडक्ट्स and services can be divided into, हम डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लोन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है तो जान जाएं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। जैसे ही बात आती है डिपॉजिट की, यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं ना कहीं जगह पर डिपॉजिट किया जाना है, यानी सेफली रखा गया है। तो इन नॉर्मल डेज, इन नॉर्मल लेमन लैंग्वेज, वी ऑल नो व्हाट आर द सेविंग्स बैंक्स अकाउंट्स। हमको पता है कि डिपॉजिट्स में कौन कौन से आ सकते हैं। सेविंग्स बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में बात किए हैं अपन, और रिकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, जब हम बात करेंगे इन सब तीन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स की होते कौन कौन से हैं। लोन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हैं, आप चाहें तो व्हीकल लोन, आप चाहें तो हाउसिंग लोन, आप चाहें तो वेटरन लोन। एक लेमन पिक्चर मैं आपको देना चाहता हूं कि हम यहां पर क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हम डिस्कशन करेंगे डिपॉजिट्स प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, लोन प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। तो लोन, जाहिर सी बात है, आपको कोई फंड दे फॉर इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग पर्पस इन ऑर्डर टू गेट सम रिटर्न्स। बैंक को भी इंटरेस्ट चाहिए रहता है ताकि वो प्रॉफिट बना सके। जब हम डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमारा पैसा बैंक के ऊपर लायबल रहता है, हमारा पैसा बैंक के ऊपर रहता है और वो टाइम्स के टाइम वो मल्टीप्लाई करके या इंटरेस्ट के साथ हमें पैसे वापस करते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सेविंग्स क्या होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होती है। उसी जगह में लोन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हैं, मैं जब आपको स्लाइड्स पे ले जाऊंगा, जब आपको बताऊंगा तो उसमें एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। बट ऑन अ लेमन टाइप मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होती क्या हैं, आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सपोज दिस इज ए हु इज अ कस्टमर, ए इज अ कस्टमर, ठीक है। सी इज एनी कंसर्न, कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जाहिर सी बात है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट्स फ्लोट करते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। तो क्या होता है, sometimes these C concern don't have the credibility or don't have the ability to sell their products to the customer directly। कहने का मतलब ये जो concerns होती हैं कभी कभी क्या होता है, ये directly sell नहीं कर पाती हैं प्रोडक्ट, किसको, कस्टमर्स को, क्योंकि उनको डाटाबेस बनाना पड़ेगा, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, वेयर द पीपल आर, कहाँ कहाँ हम प्रोडक्ट्स को डील करें, किस किस को बेचें। तो ये अच्छा डाटाबेस किसके थ्रू मिल जाता है, थ्रू बैंक, थ्रू बैंक। सो यहां पर बैंक क्या हो जाता है, एक थर्ड पार्टी, ठीक है, ये बैंक क्या हो जाता है, एक थर्ड पार्टी, और ये क्या बन जाता है, इंटरमीडियरी। ये कौन हो जाता है, इंटरमीडियरी। सो सी का प्रोडक्ट कौन फ्लोट कर रहा है, बैंक,
टू whom? टू C. सो ऐसा जा सकता है एरो. क्लियर? बैंक फ्री में तो करेगा नहीं, डेफिनेटली दे विल चार्ज सम कमीशंस फ्रॉम C, although they are floating it for their goodwill, although they are floating it for their own customer, but still though they are doing some sorts of workers, they are having some people who are floating the third party products to different concerns. So इन सब चीज़ों के बारे में जब बैंक आता है इन बिटवीन और उनके प्रोडक्ट्स को फ्लोट करता है इन टर्म्स ऑफ सम कमीशंस एंड चार्जेस, इट डिनोट्स एज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. अब एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, लोन प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं. बिफोर गोइंग इनटू द स्लाइड्स और बिफोर गोइंग इनटू द कंटेंट, लेट अस डिस्कस व्हाट इज सेविंग्स, फिक्स एंड रिकरिंग. बिकॉज सिंपल है, हर कोई आम जिंदगी में ये तो फॉलो करता है. पहले आते हैं सेविंग्स पे. अगर हम सेविंग्स की बात करेंगे, कुछ नहीं करना है, गो टू बैंक, ओपन एन अकाउंट, क्लियर, कीप सम what you say minimum balance which is required, which is the mandatory requirement for any of the bank, क्लियर. पैसे को वहां पर सेव करें और जितनी बार आपके पैसे हैं, जितने बार आप जितना जब आपके पास पैसे हैं, बैंक जाइए, डिपॉजिट कीजिए. उस चीज़ों का इंटरेस्ट आपको बैंक हर 6 महीने, क्वार्टरली, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कब कब. मेनली मोस्टली दे आर गिविंग इट ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड सेमी एनुअली बेसिस पे डिपेंड करता है और वो देते हैं उनको प्रोडक्ट्स, उनको इंटरेस्ट देते रहते हैं. तो सेविंग बैंक्स में क्या क्या क्राइटेरिया है? गो एंड ओपन अ बैंक अकाउंट, कीप मिनिमम बैलेंस. ये नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. क्लियर? कीप मिनिमम बैलेंस, रेगुलर डिपॉजिट्स थ्रू ATM, डिपॉजिट स्लिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी चीज से भी हो सकता है. नेक्स्ट, एंड दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, इंटरेस्ट रिसीव बाय द कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है कब? एंड ऑन द बैलेंसेस ऑन द डे एंड, जो भी मंथली एंड बैलेंसेस होते हैं, जो लोअर बैलेंसेस होते हैं या मंथली, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस. I think there is a mistake. We'll review on this one. Now, when we are talking about the saving products or savings banks account, go and visit a bank, open a bank account and keep some minimum balance. कुछ भी minimum balance वहाँ पर सेव करके रखिए और जब जब आपके पास पैसा है, बैंक के पास जाइए और पैसे को डिपॉजिट वहाँ पर कर दीजिए. क्लियर? नेक्स्ट, regular deposits, you can deposit the money as and when you have got their extra money. क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव कब होती है? एट द मिनिमम, एट द लास्ट बैलेंस ऑफ ईच मंथ. सपोज मान लो 6 महीने का अपन देख रहे हैं, इंटरेस्ट मिलना है 6 महीने का, तो लेट्स से आई विल काउंट फ्रॉम जनवरी टू जुलाई और जनवरी टू जून. तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून का हर मंथ का एंड बैलेंस को एडअप करके बाय एनुअली या 6 जो भी डिवाइड करना है, सम सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रहता है, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट उनको इंटरेस्ट के कस्टमर के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है. सो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आप जो पैसे हैं अपने घर में ना रख के वो बैंक में रखें, क्योंकि वी ऑल नो द मनी डजंट मल्टीप्लाई एट होम, रादर इट इज केप्ट एज इट इज. क्योंकि हम होम डिपॉजिट के भी बारे में बात करेंगे, बिकॉज वेन एवर वी कीप मनी इन होम डिपॉजिट, यानी गुल्लक में हम पैसे किस लिए रखते हैं? ताकि रहे, सेव रहे और काम करें इमरजेंसीज में. बट these banks gives you what extra benefit is the interest amount जो आपको मिलता है. इसके बाद अलावा हम बात कर सकते हैं, इसमें there is a minimum requirement or the minimum mandatory requirement that there is a restriction
restrictions on withdrawals, restrictions on withdrawals. So ये आपको दर्शाता है किसका, सेविंग्स बैंक अकाउंट के फीचर्स को. क्लियर. अब बात करते हैं किसकी, फिक्स्ड डिपॉजिट. Mainly this is done by whom? The person who have got lump sum amount. So it talks about the lump sum amount. किसी के पास हेक्टिक अमाउंट है, किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है, वो डिस्कशन करता है फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में. फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है? इफ़ यू हैव गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, इफ़ यू हैव गॉट फंड्स विथ यू, क्लियर, एंड you don't want to spend that one, rather you keep that reserve, or rather you keep that lump sum amount at a place which gives you higher amount of interest. कहने का मतलब, let's say एक person है, he has got 50,000 of rupees, clear, वो मान लो कि वो 53 एज का है. let's say he is of 53 एज, let's say he is of 55 एज, ठीक है. 5 साल बाद वो रिटायर होना चाहता है, उसके पास कुछ लमसम अमाउंट है, लेट से वो 50,000 है, क्लियर. वो 50,000 को वो क्या करता है, किसी लेट से बैंक में जाता है और बैंक वाले को बोलता है कि ये 50,000 रुपए आप मेरा रखिए इन टर्म्स ऑफ FD, इन टर्म्स ऑफ FD विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years. So on fixed deposits the bank told that we will give you interest of 9% at the end of the 5 years. So यहाँ पर उसने क्या किया, एक पर्सन है जो 55 years का एज का है, उसके पास 50,000 रुपीज़ हैं, उसने बैंक में जाके उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया. उन्होंने कहा कि अपन को इसको टच नहीं करना है, वो एज इट इज़ इट विल बी केप्ट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंक टोल्ड दैट for that 5 years we will give you 9% per annum interest on that one, and at the whole you will get a lump sum amount. तो basically after 5 years when एक get retired तो उसको amount कितना मिलेगा, कुछ ना कुछ 50,000 का 9% into 5 years, so वो कुछ भी हो सकता है, let's say वो 55,000. तो अगर ये ए स्पेंड कर देता आपने उस 50,000 को, क्या वो 5,000 जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसे मिलते? नहीं. सो दिस इज द ओनली एसेंशियल बेनिफिट विच गिव्स अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स. सो इट इज केप्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रखा जाता है, ठीक है. उसके बाद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और एट द एंड हमको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. अब आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट्स हर किसी को पता रहता है कि आरडी, इसको कहा जाता है, आरडी के नाम पर बोले जाते हैं. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं. आई नो दैट मैं जानता हूँ कि मैं हर महीने 2,000 रुपये सेव कर सकता हूँ. लेट्स से एवरी मंथ आई कैन सेव 2,000 अमाउंट. बट वो मैं क्या कर रहा था, सेविंग्स बैंक में रखता था, जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता था. सो यू शुड रिमेंबर दैट ऑन सेविंग बैंक्स in comparison to fixed deposit and recurring deposits, the interest is a very less. सेविंग्स बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर को बहुत कम होता है इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स. तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि 2,000 रुपये जो मैं डिपॉजिट करता हूँ बैंक में जाके इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, वाई नॉट टू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, वाई नॉट टू कीप दैट डिपॉजिट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें मुझे जाहिर सी बात है इंटरेस्ट मिलेगी. सो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग मीन्स व्हाट, रिपीट, राइट, रिपीट. फॉर इसका भी टाइम पीरियड होता है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बात किया जाता है. सो रिकरिंग डिपॉजिट्स आर द रिपीट डिपॉजिट्स in a recurring deposit account for a particular period of time with a particular amount of denomination which is fixed. कहने का मतलब, मैं एक बंदा हूँ जो A है, वो
5 साल के लिए, 5 साल यानी 12 पंचे 60 महीने, राइट, 60 मंथ, दिस इज 60 मंथ, फॉर 60 मंथ्स, 12 पंचे 60, करेक्ट, फॉर 60 मंथ्स I have decided that for 60 months I will keep 2000 of rupees every month in the bank in the name of RD, recurring deposits. So मैंने आपको पहले ही कहा कि आप देखो ये पैसे जो क्यूमुलेट होके 5 साल बाद आपके कितने बन रहे हैं, 60,000, सॉरी 5 साल बाद आपको जितने भी बन रहे हैं 1,20,000 रुपए बनेंगे, वो आपके 1,20,000 एक मूल अमाउंट बन गया। छोटे छोटे टुकड़ों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपन डिपॉजिट किए और वो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। और ऐसा नहीं कि आपको 1,20,000 रुपए ही मिलेंगे, वो बढ़कर 5 साल बाद कहीं ना कहीं आपको 1,30,000 या 1,40,000 बनेंगे। सो कहने का मतलब छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट, it is applicable here. So when small amount of contributions or denominations are deposits for a particular period of time, right, and the amount of the interest is received after the maturity period, then these are the features of recurring deposits. और ये तो 3 फेमस वाले हैं जो हम सब जानते हैं और जो हम छोटे बच्चे भी जानते हैं, उन डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर दे? व्हेन वी एक होता है होम डिपॉजिट्स, राइट, व्हेन यू आर होम डिपॉजिट्स, एंड नेक्स्ट इज फॉर लेट्स से होम डिपॉजिट्स, और एक होता है कभी कभी ऑन केसेस ऑफ व्हाट यू से ओकेजनल डिपॉजिट्स, आई कैन से ओकेजनल डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो होम डिपॉजिट्स आर व्हाट? जो अपने पैसे घर पे रखे, यानी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुल्लक, जो अपने पैसे बच्चे कुचे अपन जाकर डिपॉजिट कर दें, वो आते हैं होम डिपॉजिट्स के अंदर। ओकेजनल डिपॉजिट्स, लेट्स से एक फार्मर है, वो रूरल एरिया में रह रहा है, उसकी बहुत सारी बेटियां हैं या फिर बेटे हैं, उनको पढ़ाना है, सो फैमिली मेंबर्स आर मोर इन दैट कंसर्न। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही थिंक्स, व्हाई नॉट टू सेव छोटा छोटा अमाउंट, राइट, कि हम कुछ अमाउंट लेट्स से बेटी की शादी, बेटे का पढ़ाई के लिए हम सेव करते जाएं। सो ओकेजनल डिपॉजिट्स फॉर ऑन द बेसिस ऑफ, किसी के लिए वेडिंग के लिए अगर हम सेव करें, किसी के स्टडीज़ के लिए अगर हम सेव करते जाएं, क्लियर, अगर हम पैसे फॉर ओकेजन्स डिपॉजिट्स करके जाएं और जब ओकेजन आए उसे हम खर्च करें, देन इट टेक्स अंडर द फॉर्म ऑफ ओकेजनल डिपॉजिट्स। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, हम डिस्कशन क्या क्या किए? सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात किए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स, होम डिपॉजिट्स, ओकेजनल डिपॉजिट्स। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन है। अब चलते हैं उस पीडीएफ पे, उस पे डिस्कशन करते थे। मैकेनिज्म आपको मैं उन्हें बता दिया, अब चलते हैं डिस्कशन करते हैं कि उस पे क्या क्या एक्चुअली में होना चाहिए। अगर आते हैं उन चीज़ों पे, देखिए जब हम देखिए इस पूरे जगह पर हम फिलहाल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स डिस्कशन किए, आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। ये जो लाइन है इन सब चीज़ों के बारे में बात है, करंट सेविंग्स अकाउंट, स्पेशल सेविंग्स स्कीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर अपन नॉर्मली डिस्कशन करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, राइट। सेविंग्स डिपॉजिट्स के बारे में, डिमांड डिपॉजिट्स, देखिए डिपॉजिट्स दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा टर्म डिपॉजिट्स, और अदर्स में क्या क्या आते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। करंट अकाउंट होता है, जब आगे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा
करंट अकाउंट मेनली इट्स फॉर द बिजनेस पर्पस और मेनली फॉर दोज पीपल हु रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, उनको फंड्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, उन सब लोगों के लिए करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट इसमें सबसे अच्छा फैसिलिटी ये होता है कि आपके डिपॉजिट से ज़्यादा आप विड्रॉल कर सकते हैं। सो देयर इज़ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें करंट अकाउंट में। विल डिस्कस, जब आप चार्ट देखते जाएंगे तो डिस्कशन करते जाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट बता दिया, होम सेक अकाउंट, क्यूमुलेटिव कम सीकनेस डिपॉजिट अकाउंट, वहीं पर क्यूमुलेटिव यानी पैसा जमा करना, कम सीकनेस कभी कुछ बीमार पड़ गए या किसी ओकेजन के लिए, ओकेजनल डिपॉजिट्स के बारे में अपन बता दिए। ओवरनाइट डिपॉजिट्स कभी कभी क्या करती है, किसी बैंक को कॉल मनी के अपन बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें कॉल मनी के टाइम कभी कभी बैंक एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जो डिपॉजिट्स देती है सेव करने के लिए, उनके जो लिक्विडिटी मेजर्स होते हैं, जो रिजर्व्स मेजर होते हैं, उनको सेव करने के लिए जब बैंक प्रोवाइड करती है एक दिन का लोन या फिर डिपॉजिट प्रोवाइड करती है, वो आ जाते हैं ओवरनाइट डिपॉजिट्स के लिए। अब एक एक करके पॉइंट्स देखते जाएंगे, आपको और क्लियर होते जाएगा। सेविंग बैंक्स अकाउंट, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ लिमिटेड इनकम वांट्स टू सेव, आराम से जाइए बैंक में जाइए, अकाउंट खोलिए और आपको पैसे मिल जाएंगे। सीधे सीधे जाइए बैंक में, आप सेव कर दीजिए। जैसे ही मैंने बोला गो टू बैंक, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, जैसे ही बताया था कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। पैन होना चाहिए, होता भी है और आधार कार्ड से भी आजकल हो जा रहा है। If the PAN required is when you are going to deposits more than 50,000 of amount. Withdrawals are allowed subject to certain restrictions. मैं आपको पहले ही बता दिया कि restrictions हैं कुछ। Banks calculate interest on daily balance method. Interest is calculated for each day based on closing balance held at the end of the day. यानी हर डे का एंडिंग बैलेंस, हर डे का एंडिंग बैलेंस जो होता है उसको कैलकुलेट करते करते, क्यूमुलेट करते करते जो डेली बैलेंस होते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट। इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 7%। मनी कैन बी विड्रॉल विद द ATM चेक्स विड्रॉल, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम डिपॉजिट्स को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे को। देन सेविंग अकाउंट इज ऑफ अ कंटिन्यूइंग नेचर, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग, इट कैन बी जीवन काल तक चलता है। देखते हैं कि बहुत लोगों का 20-25 साल से अकाउंट बंद रहा, बस पैसे डाल लिए फिर वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब मिनिमम अमाउंट हैज़ टू बी केप्ट, जैसे ही मैंने आपको बताया मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए, यानी मिनिमम बैलेंस। नो लोन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे लोन नहीं मिलता, रादर एक लोन अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो फैसिलिटी होती है कि मान लीजिए अकस्मात कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं एंड इफ़ द कस्टमर गेट डाइड एंड देयर इज़ नो हायरार्की बिहाइंड दैट वन, सो नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो भी आपने सेव किया है वो पैसे उस नॉमिनी को मिल जाएंगे। वो 100% हो सकता है, 80%, डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एट द टाइम जब बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म डाले होंगे उसी के साइन देखा जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ उस बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, ये सब। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मान लीजिए टेलीफोन बिल बन रहा है, आपको याद नहीं है, तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इंटरनेट बैंकिंग में ही एप्लीकेबल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं इस टाइम पर आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। सो देन कम्स मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आपको बता दी। अब देखिए एक करंट अकाउंट, so in the next discussion series we'll talk about the current account deposit.